دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش ہلال عید. ہمارے ساتھ ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے خصوصی نمائندے جو آج رویت کے تعلق سے اور شہروں کے حالات اور عید کا کیا کچھ وہاں پر ماحول ہے, کیا تیاریاں ہیں, اس کی تفصیلات دیں گے. اور دینی معلومات کے لیے اور مذہبی معلومات کے لیے مولانا مفتی سعادت محی الدین صاحب ہیں کہ آپ کو کس طرح سے عید کی تیاری کرنی ہے اور رب سے کیا کچھ آج مانگنے کا موقع ہے, اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ مہتاب عالم اس وقت بھوپال سے جڑ چکے ہیں. مہتاب, آپ کا خیر مقدم ہے. مہتاب, افطار کا وقت وہاں کیا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد جو کچھ اعلان ہوگا, لیکن کیا تیاریاں رویت کی تصدیق کو لے کر وہاں پر کمیٹی کر رہی ہے؟ جیلانی مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں اس وقت موجود ہے. ہمارے پیچھے ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد کو آپ دیکھ رہے ہیں. رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ یہیں پر ہوگی. آج یہاں پر افطار کا جو وقت ہے وہ 6:59 ہے, یعنی کہ 7 بجے کے بعد مغرب کی نماز ہوگی. اس کے بعد یہاں پر چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی. رویت ہلال کمیٹی کے ممبران جو ہیں یہاں پر آئیں گے, شہر قاضی اور یہاں پر دارالفتہ دارالقضا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور یہ طے کریں گے کہ جو ہے اگر بھوپال میں, کیونکہ اس وقت جو ہے بھوپال کے افق کی اگر بات کریں تو دوپہر تک جہاں پر مطلع جو ہے صاف ستھرا تھا, اس وہی وقت دیکھ رہے ہیں کہ شام ہوتے ہی مطلع ابر آلود ہو گیا ہے. آسمان پر جو ہے کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے, صرف بھوپال ہی نہیں پورے مدھیہ پردیش کے 52 ضلعوں میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں پر رہ کر وہاں پر دیکھیں کہ جو ہے چاند دکھائی دیتا ہے نہیں, اور جیسے ہی چاند دکھائی دیتا ہے رویت ہلال کمیٹی کو اس کی اطلاع کریں تاکہ اس کی روشنی میں رویت ہلال کمیٹی اپنا کوئی فیصلہ لے سکے. یہاں پر کورونا کے قہر کی سبب جو ہے تمام لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کیونکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں, کیونکہ بھوپال کی جو روایت رہی ہے تو بھوپال میں جو ہے جب چاہے رمضان کے چاند کا معاملہ ہو یا عید کے چاند کا موقع ہو تو ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہاں پر آ جاتی تھی اور ان کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے کل ہی بھوپال میں مساجد کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں جو ہے یہ اعلان کیا گیا کہ کووڈ کا جو ضابطہ ہے جو حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے مطابق اپنی اپنی مساجد میں جو ہے محدود تعداد میں لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں اور 6:15 بجے کے بعد کے وقت طے کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر لوگ اسے گزارش کی گئی کہ وہ لوگ اگر گھروں پر نماز ادا نہیں کر پا رہے ہو کسی وجہ سے تو وہ لوگ نماز چاش جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ بھائی بیماری کا خاتمہ ہو سکے. اور یہاں پر تمام طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں لیکن کووڈ ضابطوں کے تحت کی گئی ہیں, کیونکہ بھوپال جو نوابوں کی نگری, جھیلوں اور تالابوں کا شہر اور مساجد کا شہر کہا جاتا ہے. یہاں پر 590 مساجد, اور ماہ رمضان کی بات کریں تو یہاں کی مسجدیں اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی تھی, اتنی کثرت میں نمازی آتے تھے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں پچھلے سال اور اس سال تو کووڈ کے قہر میں وہ تمام رونقیں معدوم ہو گئی ہیں. نہ تو رمضان کی وہ رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملی, نہ ہم بازار میں وہ رونق ہمیں دیکھنے ملی, لیکن لوگوں نے اپنے گھروں پر رہ کر جو ہے عبادت کی, اللہ کے سامنے اپنی توبہ استغفار کی اور اس تمام طرح کی کوشش اس لیے کی کہ اللہ اس کا راضی ہو جائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں جو ہے ان کی گناہوں سے جو ہے ان کی رحمتوں کا, برکتوں کا مہینہ اللہ نے جو انہیں دیا تھا وہ ان کے سامنے, اللہ کے سامنے ان کی عبادتیں قبول ہو جائیں. جی مہتاب, عید کو لے کر کیا کچھ سرکار کی گائیڈ لائنس ہے؟ کیا کچھ کہا ہے کہ مسجد میں صرف 5 لوگ ہی پڑھیں, جس طرح سے پچھلے سال بھی کہا گیا تھا کہ محدود تعداد میں صرف مسجد میں جو لوگ ہیں وہی پڑھیں گے. عیدگاہوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کافی پابندیاں جو ہے مختلف ریاستوں میں اس وقت ہے, بلکہ پورے ملک میں پابندیاں لگی ہیں. نماز تو نہیں ہو پائے گی عیدگاہوں میں. کیا کچھ گائیڈ لائنس ہے عید کی نماز کو لے کر, کیا مشورہ سرکار نے بھی دیا ہے؟ دیکھیے جیلانی, میں آپ کو بتا دوں کہ مدھیہ پردیش میں بوہرا سماج کے لوگوں نے آج عید الفطر کی نماز ادا کی ہے. کووڈ ضابطے میں حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے, نئی گائیڈ لائن کوئی نہیں ہے. حکومت نے جو پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا جو گائیڈ لائن جاری کی تھی کہ مذہبی مقامات میں وہی وہ لوگ جو امام مؤذنین اور مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں وہی نماز ادا کریں گے. باہر کے لوگوں کے داخلے پہ پابندی لگائی گئی تھی, وہی تمام چیزیں پابندیاں عید کے لیے نماز کے لیے بھی رہیں گی. جو وہاں پر جو 5 لوگ ہیں وہی نماز ادا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے کل بھوپال میں جو میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور ایک اپیل جاری کی کہ کووڈ ضابطے کے تحت جو ہے نماز کو ادا کریں اور سوشل ڈسٹینس کا اور حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا خیال کریں. اور اس وقت جہاں پر عید میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ گلے ملتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, معانقہ کرتے تھے, ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے, کیونکہ کووڈ کا جو بیماری اس طرح سے پھیل رہی ہے یہاں پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور مصافحہ کرنا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں پر حکومت کی گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ علماء دین نے جو ہے جو اپیل کی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. آئیے اس وقت ہم سیدھے سری نگر کا رخ کریں گے. مدثر قادری ہمارے ساتھ
जुड़ेंगे, उनसे भी देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी इफ्तार का काफ़ी लंबा वक्त है। तो बहरहाल हमारे साथ मुख्तलिफ नुमाइंदे जुड़ते रहेंगे। जैसा कि महफूज ने तफसीलात दी, वहाँ पर 6:28 इफ्तार का वक्त है, महताब ने कहा कि 6:59 का वहाँ पर वक्त है, यानी 7 बजे के करीब। और वहीं मुंबई में तो सीधे अब रुख करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती सादत मोहिउद्दीन साहब का। मौलाना, आपने ईद के ताल्लुक से तो बहुत अच्छी तफसील बताई कि किसकी ईद है किसकी नहीं है। अभी भी वक्त है, गुनाहों से तौबा की जाए। जो कुछ कमियां रह गई है रमज़ान को गुजारने में, क्या कहेंगे उन लोगों से जो बदकिस्मत हैं, उन्होंने रमज़ान को ऐसे ही गंवा दिया है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद पाक है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ ईमान वालो, तुमको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान करीमाना ये है कि तुम्हारे गुनाहों को, सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यह मुद्दा जहाँ फिजा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, लेकिन तौबा व इस्तिग़फ़ार शर्त है। माह रमज़ान की यकीनन कदर करनी चाहिए, कोताहियों से अपना दामन बचाना चाहिए, खल्क़ खुदा के हुकूक़ गसब करने से अपनी हिफाजत करना चाहिए, अल्लाह के हुकूक़ को ज़ाया करने से अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका है, इसमें कुछ कोताही हो गई है, तब भी उनको मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा व इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह हमने माह रमज़ान की कदर नहीं की है, मौला जैसी कदर करनी चाहिए थी, मौला हमारे रोज़ों को जैसे हमने रखे हैं कबूल फरमा लीजिए, जैसी हमने टूटी फूटी इबादतें की हैं मौला उनको कबूल फरमा लीजिए, उसका समर हमको अता फरमा दीजिए। और मौला अपने ख़ास फज़ल व करम से मौला सारी दुनिया से वबाओं को बलाओं को दूर फरमा दीजिए। ज़ाहिर ऐसे सच्चे दिल से रुजू होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला उनको भी अपनी रहमतों से महरूम नहीं फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि कुल्लुकुम बनु तमाम के तमाम इंसान खताकार हैं, गुनाहगार हैं। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। कौन इंसान है जो बशरी तकाज़ों से महफूज है? ज़ाहिर है इंसान बशर है, बशरी तकाज़े हमेशा उसके साथ लगे रहते हैं, कहीं न कहीं कोई चूक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे में उनको मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से वो रुजू रहें अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सुन लें, आप फरमा रहे हैं कि सारे इंसान अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार हैं, खताकार हैं, किसी न किसी दर्जे में। किसी का दर्जा कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि अम्बिया को छोड़कर जो मासूम हैं जी, और जो अल्लाह के पास मुक़र्रब बनते हैं, जो महफूज हैं, उनको छोड़कर सारे इंसान गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं, कोताहियों से सरजद हो सकती हैं। लेकिन उनमें सब में बेहतर वो लोग हैं जो अत्तव्वाबून, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपनी ज़िंदगी का सारा हाल अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं, मारूजा करते हैं। मौला आज भी मैं सच्चे दिल से आपके दरबार में हाज़िर हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा लीजिए। तो ज़रूर अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। वैसे कुरान पाक में बशारत दी गई है, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जिन बंदों की अदाएं अल्लाह को पसंद आ जाती हैं और जो सच्चे दिल से रुजू होकर नदामत के आंसू बहाते हैं, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत जब जोश में आती है तो युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उनके सय्यिआत को हसनात से तब्दील फरमा देते हैं। इतना बड़ा अल्लाह ताला का करम है, उसकी रहमतों का बड़ा खजाना है, अजीम खजाना है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको आज भी रुजू होकर सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। यही एक वाहिद इलाज है जो इंसान के नफ्स को, बातिन को पाक करता है और उसको ज़ाहिरी सुकून भी अता करता है और उसकी आखिरत को भी कामयाब बनाता है। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। ये इस वक्त रुख करेंगे श्रीनगर का। कश्मीर में हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा वक्त है इफ्तार का, आज का क्या वक्त है? और चांद देखने को लेकर, रुयत की तस्दीक को लेकर वहाँ पर कमेटियाँ किस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं? जी बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी भी जगह से जो है चांद देखने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन हम इस वक्त बाबा बामुद्दीन
रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हालांकि कोविड की सूरत हाल की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से जो गहमा गहमी है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हुए हैं और इंतज़ामिया को ये लॉकडाउन करना पड़ा और लोगों से यही तलकीन की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे और फिलहाल घरों के बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बाबा बामुद्दीन की ज़ियारत है, तो यहाँ हालांकि ये ज़ियारत अभी बंद है, लेकिन यहाँ एक मकामी मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि कुछ नमाजी यहाँ पर आए थे और ये भी मुंतज़िर है चांद के, और ये इस इंतज़ार में है कि कहीं से कोई शहादत मौसूल हो जाए, कोई ऐलान हो कि चांद देखा गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है किसी भी इलाके से, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। लेकिन जो गहमा गहमी होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन इसका कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि खुशी नहीं है, क्योंकि ईद के माने ही खुशी है और ख़ासकर जो मुतबरक माह है, जो फौकियत है इस माह रमज़ान की, तो इसके बाद जो रोज़ेदारों को ये इंतज़ार रहता है ईद का और ईद के चांद का, तो वो यहाँ पर बिल्कुल देखा जा रहा है और खुशी लोगों में है। लेकिन गम भी साथ साथ ज़रूर है कि कोविड की जो वबाई सूरत हाल है वो भी जम्मू कश्मीर में संगीन नौयत अख्तियार कर चुकी है, तो इस वजह से लोगों में थोड़ा दुख भी है और महसूसियत भी है, लेकिन साथ ही साथ दुआ गो है बारगाह इलाही में कि जो ये वबा है, वबाई सूरत हाल है, इसे नजात मिल जाए, जो आलमी इंसानियत है। और मैं आपको बता दूं कि जो चांद की फौकियत है माह रमज़ान में, तो ये हर माह में इसकी फजीलत है, अलग अलग तौर पर ये बयान की गई है, लेकिन रिवायात या फिर अगर हम अहादीस की रोशनी में देखेंगे तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चांद देखते थे हर किसी भी माह का, तो ख़ास दुआ करते थे क़याम अमन के लिए, खुशहाली के लिए, आलमी इंसानियत की बका के लिए। तो इस वजह से जो है इस चांद की फौकियत जो है इस्लाम में काफ़ी है। या फिर दूसरे मज़ाहिब की अगर हम बात करेंगे, बौद्धिज़्म है या फिर हिंदुइज़्म है, तो वहाँ पर भी ये चांद देखने की जो है अलग फौकियत है। और इस लिहाज से यहाँ पर जो कश्मीर में है काफ़ी गहमा गहमी रहती थी, लेकिन गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इस वक्त जो है गहमा गहमी कम है, खुशियाँ थोड़ी बहुत फीकी लग रही है। ये पूरे हिंदुस्तान का हाल यही है, क्योंकि कोरोना ने सबको समेट कर घर में महदूद कर दिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इबादतें हुई हैं, घरों में हुई हैं, मस्जिदों तक लोग नहीं जा पाए हैं, ईदगाह तक नहीं जा पाएंगे, ऐसे हालात बन रहे हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद, शाही इमाम ने तो खासकर ऐलान कर ही दिया है कि ईदगाह या फिर मसाजिद, जो शाही मस्जिद है, उसमें ईद की नमाज नहीं होगी, घरों में ईद की नमाज अदा करें। क्या हालात दिल्ली के बन रहे हैं, क्या कुछ वहाँ देखने को मिल रहा है और मौजूदा हालात दिल्ली के क्या है कोरोना को लेकर, और यहाँ पर इफ्तार का वक्त क्या है और चांद देखने का जो वक्त है नमाज मगरिब के बाद, क्या कुछ वहाँ तैयारी है रुयत की? देखिए जिलानी, अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा वक्त है। यहाँ पर 7:05 पर रुयत हिलाल का वक्त है और उस वक्त चांद दिखाई देगा। तो तमाम तरह की तैयारियां ज़रूर की गई हैं। तमाम मस्जिदों की छतों पर लोग ज़रूर इसका एहतमाम करेंगे और अभी थोड़ा वक्त बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले असर की नमाज अदा की गई है। इस वक्त में दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद में है, मैं उस वक्त उसमें वहां पर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो वक्त है, इस वक्त रमजान का महीना है, ये पूरा भरा होता था, ये पूरी मस्जिद पूरे तौर से भरी होती थी, ये पूरा सहन भरा होता था। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ चुनिंदा लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो मस्जिद के सिक्योरिटी के लोग हैं या जो यहाँ का ख्याल रखने वाले लोग हैं, साफ सफाई करने वाले लोग हैं, तो वही लोग सिर्फ जामा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। और यही जो रिवायत है, जो रमजान से पहले से शुरू है, जब से दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है तब से ये रिवायत चली आ रही है और ईद की नमाज के लिए भी ये रिवायत जारी रहेगी। थोड़ी देर पहले मेरी बात शाही इमाम अहमद बुखारी साहब से हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने तमाम लोगों से पहले ही अपील की है कि सब लोग कोरोना की जो वबा है इसको हल्के में न लें, हर तरह की एहतियात बरतें और जो कहा गया है, जो इस्लाम में कहा गया है कि अपनी जान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, उस पर पूरे तौर से तवज्जो दी जाए। न सिर्फ शाही जामा मस्जिद से बल्कि फतेहपुरी मस्जिद से भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि दिल्ली के अलग इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, तो सबसे अहम बात यह है
कि दिल्ली पुलिस से जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं उनके इमामों के साथ मीटिंग कर रही है। आपको मालूम है पिछले एक हफ्ते पहले जब दिल्ली में कर्फ्यू को बढ़ाया गया था, लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, तो कहा गया था इस बार थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती की जाएगी। और यही वजह है कि जो इलाके हैं, जो चाहे दिल्ली के पुरानी दिल्ली का इलाका हो या फिर ओखला या फिर जो दूसरी जगहों के जो इलाके हैं, खासतौर से मुस्लिम इलाके हैं, उन इलाकों में जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है ताकि बाज़ारों में भीड़ न लगे, दुकानें ना खुल जाएं। और बहुत ज़्यादा जो भीड़ देखी जा रही थी, बहुत कई जगह लापरवाही भी देखी जा रही थी, उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये तमाम इक़दामात दिल्ली में किए जा रहे हैं। अभी काफ़ी वक्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको आसमान यहाँ पर दिखाई देगा, आसमान पूरे तौर से साफ है, यानी कि चांद अगर दिखाई देना है तो वो बसरी आंखों से ज़रूर दिखाई देगा, यानी कि आप अपनी आंखों से ज़रूर देख सकेंगे। किसी तरह का कोई अब्र नहीं है, कोई बादल नहीं है, तो पूरे तौर से यहाँ पर जो आसमान है वो साफ है। लेकिन अभी क्योंकि वक्त है 7:05 पर दिल्ली में चांद देखने का वक्त है, तो तमाम लोग उस वक्त ज़रूर एहतमाम करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में चांद को देखा जाए। तो तमाम लोग इसके लिए ज़रूर तैयार हैं। लेकिन कोरोना ने जिस तरीके से खुशियों पर एक कदगन लगा दिया है, उसका गम भी ज़रूर है। और तमाम लोग जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको उन पर अमल आवरी करने के लिए सभी की तरफ से अपील की जा रही है। जिलानी जी बिल्कुल, आसमान साफ है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, आलूदगी नहीं है, और ये खदशा भी नहीं है कि अक्सर जिस तरह से कहा जाता है कि अबर आलूद है, चांद नहीं दिख पाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये हुआ कि ये पोल्यूशन नहीं है, अबर आलूद नहीं, आसमान साफ है। हो सकता है दिल्ली से कोई ख़बर आए, लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में लॉकडाउन है। ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मस्जिदों में भी, न ईदगाह में, आपको घरों में पढ़नी है। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मुफ्ती साहब, जिस तरह से कोरोना ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है, अब लोगों के पास काम सिर्फ यही है कि रमज़ान है, इबादत की जाए। तो रमज़ान की तैयारियां फीकी पड़ी हैं, लेकिन रमज़ान की इबादतें फीकी नहीं रहीं। लोगों को काफ़ी वक्त मिला, सब कुछ ठीक ठाक चला, इबादत के लिए अच्छा वक्त मिला है, अपने आप को संवार सके, सुधार सकें। सवाल ये है कि वबा है, वबा में शरीयत का क्या हुक्म है कि किस तरह से इबादत भी की जाए और वबा से भी बचा जाए? मुफ्ती साहब। जिस इलाके में कोई वबा हो या कोई बला आ गई हो, तो वहाँ जो हिफाजती इक़दामात हैं ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब पर रखा है, लेकिन असबाब पर तकिया भरोसा करना दुरुस्त नहीं है। असबाब ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन अल्लाह ताला पर एतमाद करें, तवक्कुल करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इन बलाओं को, वबाओं को दूर फरमा सकता है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं जो इस बला को, वबा को या और बलाओं को, वबाओं को दूर कर सके। तो नाज़रीन गिरामी, बात दरअसल ये है कि इस तरह के जब मौक़े आते हैं, हमारे इम्तिहान के होते हैं, आजमाइश की घड़ियाँ होती हैं, हर एक को देखा जाए, परखा जाए तो इस दर्जे का ईमान वाला है और किस कदर अल्लाह ताला से लौ लगाएगा और कितना ज़्यादा इस्लाम पर वो अपने आप को परिफ्ता करके इस्लाम से निस्बत जोड़ कर अल्लाह के अहकामात की तामील करेगा। ज़ाहिर इसमें हमारे लिए इम्तिहान है। इम्तिहान की घड़ियों में हम कोशिश करें रुजू इल्लाह रहें तो ज़ाहिर है ये मसला आसान हो सकता है, ये कोरोना की बला भी दूर हो सकती है और मसाइब व आलाम भी हमसे दूर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल शर्त यही है कि रमज़ान के तकाज़े जिन्होंने पूरे किए हैं वो भी दुआ करें, और जो रमज़ान के तकाज़े पूरे नहीं कर सके हैं वो भी दुआ में मसरूफ़ रहें। अभी बहुत मौका है, जो खुद मौका है बड़ा गनीमत है, काबिल क़द्र है, उसके भी हमको कद्र करके अल्लाह से रुजू होकर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इनकलाब लाने की तमन्ना के साथ और उसके अहद के साथ हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मसाइब आलम में अल्लाह की मदद नुसरत हमारे शामिल हाल हो जाए। जहाँ तक तैयारी की बात है, ज़ाहिर मादी तैयारी से ज़्यादा अहमियत रूहानी तैयारी की है। मादी जो हमारे समझे तैयारियां हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, खुशी का मौका है, लेकिन इसी पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, बल्कि मादी हमारी कोशिशों के साथ साथ हमारी तैयारी जो है वो रूहानी तैयारी होनी चाहिए। जी मौलाना, इस वबा ने बहुत कुछ सिखाया है पिछले साल से। पिछले साल का भी तजुर्बा है रमज़ान का लोगों के पास और इस साल का भी है। कई लोग जो है मोहताज हो गए, कई लोग बेरोज़गार हो गए, कई लोग परेशान हाल है। ऐसे में जो मुरफ़ल हाल लोग हैं उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। रमज़ान का एक ऐसा महीना है
और एक सिस्टम है जिस तरह से ज़कात का, सदक़े फ़ितर का, मदद का जो तरीक़ा है, इमदाद का, लोगों की कैसी मदद की जाए, अपनी ज़कात, अपना सदक़े फ़ितर कैसे और किन किन को कब कहाँ कैसे अदा की जाए, तरीक़ा क्या है कि अब चूँकि अभी वक्त है, लोग ज़कात अदा कर रहे हैं, सदक़े फ़ितर भी अब अदा करनी है, तो किस तरह का माहौल बने। लोगों कोरोना ने जिस तरह से महदूद किया है, लोगों को बताया है कि आप घर पर हैं, आप मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, उनकी क्या हालत होती होगी गुरबत की वजह से, माशी हालात की वजह से। तो ऐसे में कितनी ज़िम्मेदारी बनती है मुरफ़ल हाल मुसलमानों की कि वो दूसरों का ख्याल रखें ऐसे वक्त में, ज़कात के ज़रिए, सदक़े फ़ितर के ज़रिए। मौलाना सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, वो शहरुल मवासात, ये रमज़ान का महीना जहाँ और फ़ज़ाइल व बरक़ात का महीना है और बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाने का महीना है, वहीं एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो इस मुसलमानों पर रखी गई है वो है शहरुल मवासात जी। ये महीना गमखारी का है, दिलदारी का है, दिलजोई का है, मुसीबत ज़दगान का काम आने का है, मसाइब व आला में घिरे हुए इंसानियत का हाथ थामने का है, उनकी माली मदद करने का है, उनके दवाओं के इंतजाम में आगे बढ़ने का है। ऑक्सीजन अगर उसकी किल्लत हो तो उसकी फराहमी में क्या कुछ हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए दौड़ धूप करने का है। ज़ाहिर खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाना ये इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। ये अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक़ से इसका ताल्लुक़ है। जैसे हुकूक़ुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक़ हैं, उसी तरह बंदों के हुकूक़ भी रखे गए हैं। गोया मैंने जैसे पहले कहा है कि ये वक्त इम्तिहान और आजमाइश का है। उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश जो सेहतमंद हैं, उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश जो बीमार हैं, उनके लिए भी इम्तिहान और आजमाइश जो साहिब सरबत हैं, उनका भी इम्तिहान है जो गरीब हैं, मुस्तहिक़ हैं। ज़ाहिर ऐसे में जब मालदार हैं, साहिब सरबत हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है ज़कात के साथ साथ, सदक़े फ़ितर के साथ साथ मज़ीद अपने माल से ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो मुसीबत का शिकार हैं। यही पैगाम हमको रमज़ान के मुबारक महीने से मिलता है। ये ऐसा पैगाम है जो रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि इंसान को चाहिए, मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि इस पैगाम की रूह को अपने अंदर समो ले और ज़िंदगी तमाम इस पर अमल करके दुनिया को एक इंसानियत का पैगाम दे। जी बेशक बेशक, रमज़ान का महीना यही सिखाता है। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, मुदस्सर कादरी और इस वक्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सर, वहाँ पर जहाँ आप ठहरे हैं ज़ियारतगाह पर, वहाँ लोग चाँद देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो वक्त है चाँद देखने का, वहाँ पर आज ग़ालिबन इफ्तार का वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा तवील है, जो 7 बजे के बाद ही वहाँ इफ्तार होगा। अगर हम तैयारियों की बात करें ईद की, ईद का चांद तो दिखेगा नहीं दिखेगा ये आप बताएंगे, वहाँ से शहादत देंगे। तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहाँ पर कश्मीर में देखने को मिला है ईद की? देखिए जिलानी, जिस तरह से मैंने कहा कि जो कोविड का लॉकडाउन है तो उस वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारियां यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले ही इंतजामिया ने, सरकार की अगर हम बात करेंगे तो लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जो कि यहाँ पर 20 अजला है। 20 के 20 अजला में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो कल श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो गुज़श्ता रोज़ जो DC श्रीनगर है उन्होंने बेकरी शॉप्स या फिर जो रेडीमेड गारमेंट्स और कुछ एसेंशियल सर्विस है उसको उनके लिए डील रखी थी सुबह 6 से 12 बजे तक। लेकिन जिस तरह से उस डील के तनाजुर में लोग उमड़ आए, काफ़ी भीड़ थी बाज़ारों में देखने को मिली, तो उसके बाद जो वो ऑर्डर था तो वो वापस लेना पड़ा, कलअदम करार दिया गया वो ऑर्डर जो DC श्रीनगर ने कल अहकाम जारी किए थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस तरह से आज समझा जाता है, चाहे उलमा की अगर हम बात करेंगे तो उलमा किराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आज जान बचाने के लिए जो है कोशिश की जानी चाहिए। और जो हदीस की रोशनी में या फिर दीन की रोशनी में या मजहबी एतबार से जिस तरह से रिवायात बयान की जा रही है तो उसमें फोकस ये दी जा रही है कि जो इंसानी जानों का ज़िया है उसको किसी भी लिहाज में किसी भी तरह से रोका जाए। तो बिल्कुल मुदस्सिर, आप छतरी लेकर खड़े हैं, मौसम क्या कुछ कर रहा है कश्मीर का? अभी मौसम क्या कुछ कह रहा है, किस तरह का मौसम है? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से आज दिन भर की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की धूप कभी कभी निकल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश शुरू हो गई है और पूरा जो मतला है ओवर आलूद है।
तो अगर हम देखेंगे तो नेकेड आई से या फिर बस्ती आंख से जो है चांद देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रुयत हिलाल कमेटी जो है लगी हुई है और लेकिन अभी तक किसी भी तरह से जो है शहादत कोई भी मौसूल नहीं हो पाई है चांद देखने की। लेकिन जो यहाँ के मुफ्ती आजम है जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, तो वो भी लगे हुए हैं कि कहीं से कोई शहादत मौसूल हो जाए। और जिस तरह से आज दौर जदीद है तो जो महकमे फल्कियात या फिर महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो इन प्लेस रखी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से चांद नजर आए और ये खुशखबरी जो है ये अवाम को दी जाए, आलम इस्लाम को दी जाए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के जो इमाम हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो क्या इमाम साहब आपके खैर मकदम है, तो क्या उम्मीद है आपको, आप बताइए हमारे नाजरीन को कि कितनी फौकियत है चांद देखने की? शुक्रिया जनाब। देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि जिससे हमें इतना बड़ा महीना और इसमें फैज़ व बरक़ात रहमत, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया है और इसमें शब क़द्र भी आती है। तो बहुत सी ख़ुसूसियत इस माह रमज़ान में है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है। और इसी के साथ ही जो मुसलमान सुबह से शाम तक भूखा रहता है अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में, और उसका खौफ, अल्लाह ताला का खौफ इसके दिल में बसता है, और उसी के बिना पर ये इतना सुबह से शाम तक भूखा रहकर इस टाइम इंतज़ार करता है कि अल्लाह ताला को यही अदा बहुत पसंद आती है इस इंसान की। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे सबसे बड़ी दो चीज़ें इस बंदे की बहुत पसंद है। एक तो ये कि जब ये सुबह से शाम तक भूखा रहता है, तो जब इसके भूखे रहने से इसके बदन से जो मुंह से ये बदबू निकलती है, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशबूदार पसंदीदा शय है अल्लाह ताला के नज़दीक। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये इफ्तार का वक्त करीब आता है तो इस दरमियान इफ्तार के वक्त इस बंदे और मुझ में कोई पर्दा बाकी नहीं रहता, यानी कि हम फेस टू फेस बात करते हैं अल्लाह ताला से। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस दरमियान इस वक्त में इफ्तार के टाइम में जो भी बंदा अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता है तो वो दुआ जरूर कबूल करता है ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शअनु। तो लिहाजा ये मुतबर्रक महीना है, अज़मत वाला है, शान वाला है, और इसके जाने में इस गम में तमाम मुसलमान बेचैन होते हैं, गमगीन होते हैं। और सहाबा किबार का भी यही मामूल रहता था कि वो इंतज़ार करते थे शाबान से लेकर, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो वो चांद देखने के इंतज़ार में रहते थे। और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौर में चांद देखने के इंतज़ार में रहते थे, सहाबा किबार भी वहाँ पे चांद के इंतज़ार में रहते थे। तो जब कोई अच्छा आदिल मस्तूर इंसान चांद देखता था तो उस आवाज़ को उस बिना पर वो गवाही देता कि हमने चांद देखा, और वो गवाही आम हो जाती थी। तो लिहाजा आज दौर और ही कुछ है, आज मीडिया के ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो इसी बिना पर चांद देखना इस्लामी तारीख में हर महीने के लिए अफजल है, लेकिन उलमाए किराम ने बयान किया है कि 5 महीनों में वाजिब किफ़ाया देखना है चांद, यानी कि रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़ादा, इनमें चांद देखना वाजिब किफ़ाया है। वाजिब किफ़ाया का मतलब यह है कि एक तो ये ज़रूरी मुदस्सिर लग रहा है कि आपके पास बारिश जो है तेज़ हो रही है और मौलाना से गुफ्तगू का सिलसिला आप जारी रखें क्योंकि मौसम वहाँ ख़राब है, अब आलूद हो गया, बारिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से शबाना जुड़ चुकी हैं और राजकोट से अंकित भी जुड़ चुके हैं। शबाना के पास रुख करेंगे। शबाना, वहाँ पर मगरिब की नमाज हो चुकी है, रुयत हिलाल को लेकर इंतज़ामिया वहाँ का क्या कुछ तैयारी कर रहा है, कब तक ऐलान करेंगे, क्या कुछ इत्तला है अभी रुयत की? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मगरिब की अजान हुई है और अफ्तार जो है वो हो रही है। हमारे पीछे आप देखें कि ये टीपू सुल्तान मस्जिद है जो शहर की तारीखी मस्जिद है। यहाँ रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग होनी है और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये मीटिंग जो है वो वर्चुअली मीटिंग मुनक्किद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं वो मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर फ़िलहाल 10 से 20 लोग जो है हम कह सकते
सकते हैं कि क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, इसलिए यहाँ 20 लोगों की गुंजाइश है, ये इजाज़त दी गई है जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन ये तमाम लोग रुयत हिलाल कमेटी में शामिल नहीं होंगे। रुयत हिलाल कमेटी की जो मीटिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और सिर्फ 2 लोग जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। और चांद के ताल्लुक से जो भी शवाहिद हैं, जो भी बंगाल के दीगर हिस्सों से, खासकर जो मुख्तलिफ ज़िलों से, सुंदरबन और मुर्शिदाबाद के जो इलाके हैं वहाँ सबसे पहले चांद देखा जाता है, तो वहाँ से किस तरह के शवाहिद आते हैं इस ताल्लुक से जो है वो यहाँ फ़ोन करके, जो टीपू सुल्तान मस्जिद है वो फ़ोन करके यहाँ बताया जा सकता है। साथ ही साथ जो नाखुदा मस्जिद है कोलकाता की, नाखुदा मस्जिद में भी रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग हो गई, मीटिंग में मौजूद है। और चांद के ताल्लुक से जो भी शवाहिद आए हैं उसके ताल्लुक के बाद ही ऐलान किया जाएगा। अभी यहाँ स्टार हुआ है और अजान जो है वो आप देखें कि मस्जिद में नमाज के लिए जो है वो लोग जा रहे हैं। और ठीक है, अभी मीटिंग होनी बाकी है, इंतजार कर लेते हैं मीटिंग में क्या कुछ तय होता है शवाहिद लेकर। इस वक्त रुख करेंगे सीधे अंकित का, राजकोट चलेंगे। अंकित, आप क्या अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त मौसम क्या है राजकोट का, मौसम किस तरह का है? या सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो जो दाऊदी वोरा समाज है उन्होंने अपना 30वां और जो अंतिम रोज़ा है वो कल ही रख लिया था। और सुबह से अगर राजकोट या सौराष्ट्र की बात की जाए तो दाऊदी वोरा समाज है वो सुबह से ही ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो सुबह से ही मना रहे हैं। सबको आज सुबह ही उन्होंने एक नमाज अदा की थी और उसके बाद एक दूसरे को ईदी की मुबारकबाद भी दी थी। आज की अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम बिरादर के जो लोग हैं वो आज का अगर इफ्तार का वक्त अगर जो उसकी बात की जाए तो वो 7:15 तक का है। जो मुस्लिम बिरादर के जो लोग हैं वो हाल ही अभी 6:30 से 7 बजे तक वो वेट करेंगे कि उनको चांद है वो दिख रहा है। अगर चांद आज अगर नहीं दिखता है तो कल वो फिर से एक बार अंतिम रोजा है वो रखेंगे और परसों है वो ईद मनाएंगे। मगर आज की अगर बात की जाए तो मौसम हालांकि काफ़ी अच्छा है, बादल उस तरह से नहीं दिख रहे, इसलिए पूरे के पूरे चांसेस है कि चांद दिख जाए। अगर चांद दिखता है तो जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कल राजकोट और समग्र सौराष्ट्र में वो मतलब कहा जा सकता है कि वो ईद का जो त्योहार है वो मनाएंगे। जी अंकित, कोविड के पेश नज़र अगर हम बात करें तो ईद की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से है ईद को लेकर के? लोग क्या घरों में ही नमाज पढ़ेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर? जी अगर राजकोट और सौराष्ट्र की बात की जाए तो जिस तरह से अभी यहाँ पे कोरोना का जो संक्रमण है वो जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से बढ़ोतरी है जो केसेस में दिख रही है, अभी मतलब जो शहरी विस्तार है उसमें नहीं दिख रहा है, मगर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे दिन प्रतिदिन अगर हम बात की जाए तो कोरोना के पॉजिटिव केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। उसी के चलते हुए राज्य सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। उसी के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर है और बात की जाए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी एक मतलब जाहिरनामा है वो जारी किया है और जिसी के चलते हुए सभी को एक बात की इत्तला दी है कि लोग अपने घर पर ही रहकर जो नमाज है वो अदा करें, एक दूसरे को ईदी दे मगर वो फ़ोन से दे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और उसी के चलते हुए हर साल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरा जो महीना है वो खत्म हो रहा है और उसके बाद जो ईदी राजकोट में जो दिख रही है, लोग काफी मतलब संख्या में इकट्ठे होते हैं, सवैयां खाते हैं, तो काफी इस बार है जो लोग मिस भी कर रहे हैं। जी एक तरह से मतलब ईद जो है, एक तरह से लोगों की ईद जो है लॉकडाउन के सबब फीकी हो जाएगी, लोग घरों में महदूद होकर ईद करेंगे। तो बहरहाल जिस तरह से अंकित ने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईद मनाएं और बचें भी, दूसरों को भी बचाएं। ईद कहीं जा नहीं रही है, घर में भी ईद मनाई जा सकती है। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं, दीगर उलमा है शहरों के, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि आप अपने शहरों, अपने इलाकों में जिस तरह के हालात हैं और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक ईद मनाएं, अपने घर में मनाएं, नमाज अपने घर पर अदा करें। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक बाकायदा एडवाइज़री जारी की गई है कि आपको ईद की नमाज़ कैसे पढ़नी है, तरीक़ा क्या है, सारी चीज़ें बताई गई थी कि परेशान न हो, 4-5 लोग घर के इकट्ठा हों और ईद की नमाज़ घर पर भी अदा की जा सकती है। अभी फ़िलहाल हम अपने तमाम नाजरीन को ये बता दें कि मुल्क के किसी हिस्से से
चांद देखने की कोई इतला नहीं मिली है। एक बार फिर बता दें, मुल्क के किसी हिस्से से, हिंदुस्तान के किसी हिस्से से, किसी शहर से चांद देखने की कोई इतला नहीं मिली है। अभी तक रुयत की शहादत सामने नहीं आई है। कुछ जगहों पर मौसम साफ है, तो जैसा कि हमने देखा श्रीनगर में बारिश हो रही है, और कुछ जगहों पर मतला साफ है, कुछ जगह पर अबर आलूद हैं। तो इसकी लगातार हम आपको जानकारी देंगे। अभी वक्त है। शबाब इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, लखनऊ का मौसम इस वक्त क्या कुछ कह रहा है? चांद देख पाएंगे कि नहीं? देखिए, मुमकिन उम्मीद तो खोजी जा रही है कि चांद को देखा जा सके। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हैं हम लोग, और यहाँ पर तमाम जो उलेमा हैं जो मरकज़ी चांद कमेटी के, वो इस वक्त चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम साफ है, फिर भी चांद के दिखने की कितनी गुंजाइश है? मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। जी हजरत, क्या उम्मीद है चांद दिखने की? चूँकि आज 29 रमज़ान मुबारक है, लिहाजा चांद देखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और कोई भी फ़ैसला इंशाअल्लाह 7:30 बजे तक लिया जाएगा। और हालांकि आज चांद दिखने की कम उम्मीदें हैं, और लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है। और अगर चांद हो जाता है तो इंशाअल्लाह कल ईद होगी, और अगर चांद नहीं होता है तो परसों ईद होगी। और इस सिलसिले में मेरी सबसे यही अपील है कि जब ईद के चांद का फ़ाइनल अनाउंसमेंट हो जाए, तभी उसके बाद आगे तरावी का अहतमाम करें। अगर चांद नहीं होता है तो फिर, और अगर चांद हो जाता है तो भी तरावी की नमाज़ नहीं होगी। और उसी के साथ साथ ईद के मुबारक मौके पर भी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें, और जो अपीलें की गई हैं ईद के सिलसिले में, उस पर भी पूरी तरीके से अमल किया जाए। शबाब, कब तक चांद देखा जाएगा? कितनी गुंजाइश है, कितना वक्त रहता है चांद देखने का? ये लोगों से यही अपील की गई है कि जिस तरीके से ईद में सबने प्रिकॉशंस लिए हैं, उसी रमज़ान में सबने प्रिकॉशंस लिए हैं, उसी तरीके से ईद के मौके पर भी सब लोग घर में रही कर ईद की नमाज़ अदा करें, और मसाजिद में सिर्फ 4-5 लोग जो रहते हैं वही नमाज़ अदा करें। और जिस भी घर में 4 मर्द हजरात हैं तो वो ईद की नमाज़ घर पर अदा कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सिवैयाँ भी घर ही पर खाई जाएं, और किसी भी रिश्तेदार के यहाँ मिलने ना जाया जाए, और ना किसी के गले मिला जाए, ना किसी से हाथ मिलाया जाए, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए से ही सबको मुबारकबाद दी जाए। उसी के साथ साथ जो हालात हैं उसके मद्देनज़र ये भी अपील की गई है कि सब लोग अपने ईद के बजट का 50% गरीब और गुरबा में तकसीम करें। आज चांद को देखे जाने की कितने वक्त तक गुंजाइश है? लखनऊ में मौसम कैसा है, और कै बजे तक जो है मुमकिन उम्मीद है चांद अगर दिखा तो दिखा? नहीं, अभी तो अजान में बस चंद ही मिनट बाकी रह गए हैं, और नमाज के बाद थोड़ी देर और चांद देखने का अहतमाम किया जाएगा, और उसके बाद कोई भी फ़ैसला इंशाअल्लाह जल्द से जल्द किया जाएगा। जिस तरीके से लखनऊ की बात अगर करें तो चांद देखने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं। 6:50 तक का वक्त है यहाँ पर मगरिब का, और उस वक्त तक जो है वो देखने की कोशिशें जो है वो की जाएंगी, क्योंकि 5-7 मिनट के बाद अफ्तार का वक्त हो जाएगा, और उसके बाद अफ्तार करने के बाद एक बार फिर कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि अब मसले हो गए हैं कि 8 बजे तक फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो जो भी मरकजी चांद कमेटियां हैं वो करेंगी। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में जो सुन्नी जमात के लोग हैं वो यहाँ पर चांद देख रहे हैं, वहीं शिया हजरात जो हैं वो दूसरी जगह से, जो शिया मरकजी चांद कमेटी है मौलाना सैफ अब्बास, वो वहां से सतखंडा से चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही मरकजी चांद कमेटियां आपस में राय मशवरा करने के बाद रात में 8 बजे जो है वो फाइनल अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगी कि लखनऊ में चांद की क्या तस्दीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबाब, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम रुख करेंगे मुंबई का, लेकिन एक ब्रेक लेना चाहेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे। वसीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, अंकित भी है, शबाब भी है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और मुंबई का रुख करेंगे।